Okay, good afternoon, students. We'll begin with other connectives. Like other connectives are, some of the other connectives are NOR and NAND, exclusive OR. Let P and Q be any two formulas, then P exclusive OR Q, in which the connectives, this exclusive OR is true when both are same. P and Q both are same, you get the true in case when both are dissimilar, and false in case if both are same. This we have already covered in the last session. I am just revising it. ट्रू ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, सेम है तो फॉल्स आएगा, डिसिमिलर है तो ट्रू आएगा, डिसिमिलर है तो ट्रू आएगा. ओके. द सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और इज सी. जो हमारा ये और का सिंबल था उसके ऊपर बार लगाया हुआ है, दैट इज एक्सक्लूसिव और. ओके. Now some of the properties or some of the equivalence relation of this exclusive OR is P exclusive OR Q is equivalent to Q exclusive OR P, which is symmetric relation, or we can say commutative property. Okay. Then associative property, P exclusive OR Q or exclusive OR R can be written as P exclusive OR Q exclusive OR R. Okay. Similarly, distribution law, P is being distributed among these two, Q and R, which is shown by exclusive OR, so it is being distributed like this. P exclusive OR Q, so P negation of Q और negation of P and Q. देखो कैसे लिखा हुआ है इसको, एंड में कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव और को किस में कन्वर्ट किया, एंड में. तो P exclusive और Q is equivalent to P and negation Q or negation P and Q. This formula, just remember this formula. ये जो फॉर्मूला है इसको देखो आप, P एक्सक्लूसिव और ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4, P एक्सक्लूसिव और Q इज इक्वल टू P and negation of Q और negation of P and Q. ठीक है. This fifth formula also you see that P exclusive or Q is equivalent to negation of P biconditional. This is biconditional Q. तो biconditional का formula क्या था, P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. This formula, P implies Q and Q implies P. So this should be Q implies P, right? So these two formulas, these three formulas, fourth number, fifth number, and this formula you should remember. So P exclusive or Q is equivalent to P and negation of Q or negation of P and Q. Negation of P and Q is equivalent to P implies Q. P and negation of Q is equivalent to Q implies P. ये इसके बराबर है, ये वाला जो है ये मीनिंग है और ये वाला जो है ये मीनिंग है. So this can be written like this also or this also. Okay. Okay, are you getting these two formulas, 4 and 5 number? Now we'll switch over to next one. Remember these 4 and 5 one formula. Now let's begin with the other connectives, NAND and NOR. NAND is a combination of NOT and AND. The word NAND is a combination of NOT and AND, where NOT stands for conjunction. NOT जो है that where this NOT stands for negation and AND stands for conjunction. NOT stands for negation and AND stands for conjunction. Okay. The connective NAND is defined by this symbol and is represented by this. Okay. NAND is a combination of NOT plus AND. NOT plus AND मतलब NOT and AND. दिख रहा है ये? NOT and AND. AND का NOT करना है. NAND is NOT and AND का NOT करना है. तो P NAND
Q इज इक्वल टू P एंड Q, P एंड Q का नॉट किया, दैट इज NAND। NAND क्या है? P एंड Q का नॉट, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड फॉर्म्स NAND। तो पहले क्या करना है? एंड निकालना है, एंड के बाद में उसका नॉट करना है। तो एंड निकाला, उसका नॉट किया, तो ये बन गया NAND। और NAND का सिंबल क्या हो गया? ये वाला अप एरो। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। पी क्यू का एंड निकाला, तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, false true is false, and both false is false. So it is true only in case both are true, and is true only in case if both are true. Okay, both are true. अब इस पूरी कॉलम का निगेशन निकालना है, दिस नॉट निकालना है, इस पूरे कॉलम का निगेशन निकालना है, नॉट निकालना है, ये एन निकालना है, ये निगेशन निकालना है, ये निगेशन निकालना है। तो पी एंड क्यू का क्या निकालना है? निगेशन, नॉट निकालना है। तो ट्रू का क्या बन गया? फॉल्स बन गया। और ये तीनों फॉल्स का क्या बन गया? ट्रू बन गया। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। And following are the equivalents express this negation in terms of following equivalents express this NAND in terms of negation, conjunction, disjunction. Okay, that is and or and not, नॉट और एंड के फॉर्म में हमको ये लैंड को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तीन इक्विवेलेंस दिए हुए हैं। पहला वाला इक्विवेलेंस क्या है? फर्स्ट इक्विवेलेंस इज P NAND Q, P NAND Q, तो ये एंड निगेशन। ठीक है, अब जब इसको हम इस एंड को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये निगेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये NAND जो है, ये वाला नॉट जो है, ये वाला जो सॉरी ये सिंबल जो है एंड वाला सिंबल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। ये एंड वाला सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। और ये जो हमारा निगेशन है, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो निगेशन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा पी को, तो पी को निगेशन मिल गया, पी को ये निगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पी को निगेशन मिल गया। तो निगेशन जब ये एंड के ऊपर अप्लाई होगा, ये निगेशन, तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? जल्दी बताओ, जो कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। विच आइडेंटिटी आर वी डिस्कसिंग इन दिस केस? negation is being applied to and, so this negation is applied to and, तो p को है negation मिल गया, इस p को भी negation मिल गया, और ये and convert हो गया और में। कौन सी आइडेंटिटी है? डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी गुड, डी मॉर्गन्स लॉ आइडेंटिटी नंबर 6। वेरी गुड, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, और ये दो बार निगेशन p और निगेशन p, आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा निगेशन ऑफ p निकल गया। कौन सा लॉ है ये? आइडेम्पोटेंट। कौन सा लॉ है? फर्स्ट नंबर चेक करो आइडेंटिटी। यस मैम। फर्स्ट आइडेम्पोटेंट है क्या? लेट्स सी द आइडेंटिटी। फर्स्ट लॉ, ओके। P or P is equivalent to P. P and P is equivalent to P. So either it is negation P, or simple P is equal to P. Idempotent law identity number 1. Okay. Now let's switch to our NAND. So NAND is one of the connective. NAND is one of the other connectives which is equivalent to not and. तो पहले and का क्या करना है? not करना है। ये एंड का नॉट करना है, फिर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अलग अलग हो गए, और ये फिर ये आइडेम्पोटेंट लॉ लगाकर निगेशन पे आ गया। नाउ द सेकंड इक्विवेलेंस इज P एक्सक्लूसिव और P NAND Q। दिस इज P NAND Q, NAND P NAND Q, दो बार है P NAND Q। ठीक है, तो ये कैसा होगा? दिस P NAND Q इज निगेशन ऑफ P NAND Q, दो बार है ना ये। तो हमारा P NAND Q दिख रहा है ये।
P एंड Q, तो कैसे लिखा, इसके पूरा निगेशन लगा दिया, P एंड Q कर दिया इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो ये कैसे बनेगा, ये मेरा टर्म पूरा का पूरा सपोज एक टर्म है, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, ठीक है। जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये बीच में नैंड है, बीच में नैंड है, तो P एंड Q, P एंड P, और बाहर निगेशन लगा दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे, निगेशन बाहर लगा दिया, P नैंड Q एंड P नैंड P नैंड Q। ठीक है, ये दो बार लिखा हमने, एक आउटर ब्रैकेट ये वाले फॉर्म में लिखा हमने, P एंड P, तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और बीच में एंड, और बाहर निगेशन, बाहर निगेशन, तो ये दो बार लिखा है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, P एंड P is equal to P, okay, this is equal to P। So P and P is equal to P, this and this same and है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, this is equivalent to P NAND Q, ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन, ये लिखा है यहाँ पे। और इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, P NAND Q का फिर से मीनिंग क्या हो गया, दोबारा से निगेशन P एंड Q, तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर निगेशन 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 P एंड Q, तो ये दोनों निगेशन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों निगेशन कैंसिल हो गए, तो यू लेफ्ट विथ P एंड Q। समझ में आई है ये वाला इक्विवेलेंस। सो P NAND Q, NAND P NAND Q दो बार है, तो इसको निगेशन, मैम आवाज नहीं आ रहा है कुछ, किसी को भी कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है मैम आवाज। हाँ मैम आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही आवाज मैम। कम आ रहा है मैम, आवाज कम आ रहा है बहुत। ओके। P एंड Q अभी आ रही है, P NAND Q अभी आ रही है, यस मैम, यस ओके। मैम। P NAND Q, NAND P NAND Q, ये दो बार लिखा हुआ है ना, इस दो बार का हमने ये वाला ऐसा फॉर्मूला ये वाला लिखा है, बिकॉज ऑफ द अबव इक्विवेलेंस, P NAND P इज इक्वल टू इनिगेशन P एंड Q, सॉरी P एंड P, ये वाला जो पहला वाला है इसको हमने नीचे वाले के लिए अप्लाई किया है, तो ये एंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो जब मैंने इसको एंड में कन्वर्ट किया तो डायरेक्टली हमने इसको ऐसे लिखा, ये एंड में कन्वर्ट करके, और ये दो बार है, फिर ये एक बार बन गया आइडेम्पोटेंट लॉ से, और फिर इसके ऊपर वापस फॉर्मूला लगाया तो डबल निगेशन आ गया, और डबल निगेशन लगाने के बाद में ये P एंड Q बन गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंस दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंस दिया हुआ है सेकंड वाला जो है। सिमिलरली थर्ड वाला इक्विवेलेंस देखो, थर्ड इक्विवेलेंस में क्या है, P NAND P NAND Q NAND Q, फिर से वही लगाया, कौन सा फॉर्मूला, पहला वाला, निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड निगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ओके। तो निगेशन ऑफ ऐसा, निगेशन ऑफ P P and Q
NAND Q, ठीक है। फिर निगेशन बाहर आ गया, अब इसको फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड P, ब्रैकेट क्लोज, एंड negation of Q and Q। तो ये 2 बार है, ये सिंपल P बन गया, एंड ये 2 बार है, ये सिंपल Q बन गया। ये जो ऑपरेटर है ये निगेशन यहाँ लग गया, यहाँ का निगेशन यहाँ पे लग गया बाहर, और ये आउटर का निगेशन बाहर लग गया। इसके ऊपर वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये निगेशन निगेशन कैंसिल होकर ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली और आ गया, P और Q। ये NAND जो है ये और में कन्वर्ट हो गया, एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो गया। ये इक्विवेलेंस दिया हुआ है, दिस इज द इक्विवेलेंस व्हिच इज गिवन टू यू। इसको आप प्रूव कर सकते हो, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। ओके, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले लगाने हैं। तो हम बेसिकली इसको अंदर नहीं जाते हैं, इसको इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दीज आर द 3 इक्विवेलेंस व्हिच आर देयर। मतलब आप P NAND P जो है उसको क्या किया, निगेशन P। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, P एंड Q, एंड लास्ट वाले का क्या फॉर्मूला बन गया, लास्ट वाले का P और Q, P और Q। समझ में आया क्या ये इक्विवेलेंस? इसको करके देखना पड़ेगा आपको। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर वाला, यू हैव टू डू दैट, इसको करके देखना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों, मतलब इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, और इसका मीनिंग ये है। ये सेकंड वाले में फर्स्ट वाला अप्लाई किया, एंड थर्ड वाले में भी फर्स्ट वाला अप्लाई करके यू गेट दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू और नॉर। एक अगर कनेक्टिव में NAND है विच इज एंड का नॉट। नेक्स्ट कनेक्टिव जो है और का नॉट, दैट इज नॉर। और का नॉट, दैट इज नॉर। नॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और, नॉट एंड और का नॉर कॉम्बिनेशन है। तो पहले और निकालना है P और Q, और फिर उसका नॉट निकालना है, ये नॉट निकालना है। इसका एब्रिविएशन देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका सिंबल क्या है, डाउन एरो, इसका सिंबल क्या था, अप एरो। ये एंड का नॉट, ये एंड का नॉट, ट्रुथ टेबल देखो, एंड का नॉट। ये है नॉर, और का नॉट, ये और का नॉट, इसका डाउन एरो सिंबल है। ये अप एरो सिंबल है, NAND का अप एरो सिंबल है, और ये एंड का नॉट, ये नॉर का डाउन एरो सिंबल है, और का नॉट। ओके, नाउ सी द ट्रुथ टेबल, P और Q, PQ। If any of the preposition is true, the result is true. True, true, true. True, false, true. False, true is true, and both false is false. And you have to now find out the negation of column number 3. ये थर्ड कॉलम का हम क्या निकालेंगे, we'll find out the negation. So true का false, true का false, true का false, and false का true. This is the truth table for NOR. This is the truth table for NAND. अब ये तीन इक्विवेलेंस जैसे उसके दिए हुए थे, सेम इक्विवेलेंस इसके भी दिए हुए हैं, तीनों इक्विवेलेंस। देखो यहाँ पर ये NOR दिया हुआ है, NOR को कैसे रिप्रेजेंट किया, निगेशन ऑफ P और P, निगेशन ऑफ P एंड P, निगेशन ऑफ P। सिमिलरली यहाँ पे इसका फॉर्मूला P और Q, इसका फॉर्मूला P एंड Q। ओके, सो दीज आर द 3 इक्विवेलेंस फॉर NOR। जैसे ये 3 इक्विवेलेंस और NAND के हैं, ये 3 इक्विवेलेंस NAND के हैं, वैसे ये 3 इक्विवेलेंस है NOR के हैं। Now see the example, if A PQR is given by P, ये कौन सा सिंबल है, this is which symbol, this is which NAND. symbol, NAND, NAND. this is NAND. So Q and negation P NAND P, find its dual,
Also find the formation which are equivalent to A and A star, but which contains the connectives and or negation. So given PQR, P NAND, Q and negation P NAND P. NAND को किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉट में. ये NAND को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये NAND को किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉट में. ओके. P R NAND P, R and P और निगेशन लगा दिए. R ये NAND है ना, ये देखो ये वाला NAND है. P NAND Q, इसका फॉर्मूला क्या है? NAND है तो निगेशन आ गया और AND का निगेशन P and Q, P and Q का निगेशन दैट इज NAND. तो ये यहाँ पर ये टर्म, ये प्रपोजिशन, ये दोनों प्रपोजिशन को एंड से ज्वाइन किया और इसके बाहर निगेशन लगा दिया. ये बाहर में निगेशन लगा दिया. ओके. अब फिर से ये वाला जो है, दो निगेशन कैंसिल हो गए. R एंड P तीनों आ गया. अब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये NAND है, फिर से लिया हमने निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R एंड P. तो ये इसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? वी हैव रिप्रेजेंटेड द प्रपोजिशन व्हिच इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ ओनली NAND के फॉर्म में, सॉरी AND के फॉर्म में दिया हुआ है. ये जो है NAND, इसको हमने AND में रिप्रेजेंट किया. ये ऑलरेडी सेम है और ये NAND को फिर हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे AND में. सो दिस इज द डुअल. डुअल में क्या करते हैं? उसके पैरेलल सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड है तो और में, और है तो एंड है तो और में, और है तो नॉट में, और है तो एंड में. अपोजिट में रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है सिंबल, इसको उसका डुअल फाइंड आउट करना है. तो उसके ये सेम सिंबल नहीं यूज करना है, दूसरा सिंबल यूज करना है. कौन सी सिंबल यूज कर सकते हैं? ये तीनों में से कोई भी सिंबल, बट ये वाला सिंबल यूज नहीं करना है. ये पर्टिकुलर सिंबल यूज नहीं करना है. तो इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज करना है. तो इसको हमने कन्वर्ट किया, डुअल फाइंड आउट किया. जैसे देखो ये हमने डुअल पढ़ा था,